Good morning, students. So, today we'll start with a new topic that is a buffer solution. Okay, so buffer solution means a kind of solution which always resist its pH, यानी एक ऐसा solution जो कभी भी अपने pH वैल्यू में चेंज नहीं होने देता है। कब? जब उसमें आप चाहे कोई भी किसी भी टाइप का एसिड मिलाएं या किसी भी टाइप का बेस मिलाएं, यानी दैट मीन्स इट ऑलवेज रजिस्ट। यानी अगर आप किसी सोल्यूशन में अगर कोई एसिड या बेस मिलाते हैं तो क्या होगा, उसका ओरिजिनल पीएच चेंज हो जाना चाहिए। बट बफर सोल्यूशन उस टाइप के सोल्यूशन होते हैं जो कि उस चेंज को रजिस्ट करते नहीं होने देते। ओके, आई हैव रिटन द डेफिनेशन here. I'll read it for you. That any solution which resists any change in its pH on addition of small amount of acid or base, which maintains pH fairly constant even on addition of small acid or base. Okay, and now is there are two types of buffer solution. First one is acidic, then is basic. We'll study both of them. Okay, first we'll start with the acidic buffer. Acidic buffer is generally formed by the combination of the weak acid and a salt. That salt comes from a weak acid and strong base. And for basic buffer, the combination is weak base and salt. That again, that salt comes from weak base and strong acid. Okay. So now we'll start with the acidic buffer. Acidic buffer, you can check or you can see the example. For example, the combination of weak acid and salt, like CH3COOH along with CH3COONA. That means acetic acid and sodium salt of acetate. Next is HCN and NaCN. Next is H2CO3 and K2CO3 combination. Next is benzoic acid and benzoate salt, potassium salt of benzoic acid. Next is HF and NaF, then H2S and K2S. So these are the direct examples from where you can check or resemble the examples of acidic buffer. But there are some kind of mixtures also. That means the indirect method also we have, from where you can check whether the compound is acidic buffer or not. So next is the indirect method. In indirect method, they can give you like a strong base like NaOH and acetic acid. Okay, that is weak acid. So if you can see here that NaOH and acetic acid, it gives sodium acetate and H2O. Okay, this combination is also known as the acidic buffer. But please remember, in this type of compound NaOH का concentration बहुत कम होगा 0.1 m और acetic acid का बहुत ज़्यादा होगा 0.5 m. ओके, क्योंकि क्या बना है आपका, ये सोडियम सॉल्ट बना है जो कि किससे बना है, इससे बना है। यानी ये बात तक रहना चाहिए, जब तक सॉल्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद भी इसका कंसंट्रेशन रिटेन रहना चाहिए। Next combination is NaCN, a salt, and a strong acid, that is H2SO4. Again, NaCN का concentration है 0.4 m. बेटा ये जो मैं concentration बोल रही हूँ, this is not necessary कि इतना ही हो. I have just set an example कि इसका concentration हमेशा ज़्यादा होगा. Okay. Then H2SO4, it gives the combination of KCN and NaSO4. Sorry, it will be Na2SO4. Next is HNO3 and sodium acetate. It gives the combination of weak acids, acetic acid and NaNO3. Then HCOH and KOH. It gives HCOK and H2. So these are the kind of indirect buffer solution. Now next we will discuss the pH of buffer solution, especially the pH of acidic solution. Okay, I'll show you that. Okay, pH of any buffer solution for the acidic, it comes, the formula actually comes, that is pH is equals to pK plus log 10 salt upon acid. How it comes, I'll show you. Example is that if we'll take two type of compound, first is weak acid, that is CH2COH along with CH2COONA, that is salt. So CH2COOH, it gives on decomposition, it gives CH2CO negative plus H positive, and CH2COONA, it gives CH2COO negative and Na positive. Okay, if we'll write the Ka, so what happens, Ka will write that CH2CO negative plus H positive upon CH2COH. This is the first, for the first reaction. But please remember that CH2COO negative, this one, it actually comes from the concentration of this one.
हम इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, यानी इस वाले का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन क्या है वो यहाँ से आया है, क्योंकि पहले वाले में तो क्या है पूरा रिवर्सिबल है। ओके, और यहाँ जो एसिटिक एसिड है ये कौन सा वाला है? ये है एसिड जो कि इनिशियल स्टेज में था। ओके, सो नाउ वी कैन राइट H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू Ka एसिड अपॉन सॉल्ट। एसिड अपॉन, हमने क्या करा, इसको चेंज कर दिया, हमने H पॉजिटिव को यहीं रह गए, बाकी सबको मूव करा दिया, तो ये हो जाएगा Ka एसिड इंटू सॉल्ट। एसिड क्या है? ऊपर, यानी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब H पॉजिटिव की जगह ये भी तो लिख सकते हैं माइनस log 10 ऑफ H पॉजिटिव, यानी आपने क्या करा, दोनों साइड लॉग ले लिया, और इसको आप ये log A अपॉन बी क्या होगा? log A माइनस बी, तो ये होगा माइनस log 10 Ka माइनस log 10 ऑफ एसिड प्लस log 10 ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये वाला टर्म। अब ये क्या होता है? ये होता है pH। आपने क्या करा, ये pH तो होता है, और ये क्या है आपका log 10 ऑफ Ka, जैसे वो pH था ये pKa, तो ये क्या हो जाएगा log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, so this equation is also known as Henderson equation, although that is removed from the syllabus, but we have to see here. Okay, now the numericals based upon this, that find the pH of a solution having 0.1 m CH2COOH and Ka is 10 to the power minus 5 and 0.2 m CH2COO Na. Okay, the formula is pH is equals to pKa plus log 10 salt upon acid, where please remember the salt comes from the CH2COO negative. Okay, now in place of pKa we can write down minus log 10 of Ka, value the Ka is 10.5, then salt value 0.2, acid's value 0.1. फिर इसको आप सॉल्व करिए, ये 0 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये log 2, यानी ये log 2 का वैल्यू होता है 0.30, इसको सॉल्व करिए, आंसर विल बी 5.3. नेक्स्ट, फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोल ऑफ HCN, that is Ka is equal to 10 to the power minus 5 and 0.10 mole NaCN present in 1 liter solution. अभी कंसनट्रेशन निकालना पड़ेगा हमें, तो वही फॉर्मूला है, सॉल्ट आपका NaCN से आएगा, एसिड आपका HCN है। ठीक, अभी आप कंसनट्रेशन में क्या लिखोगे, जो उनके नंबर ऑफ मोल दिया है अपन वॉल्यूम, तो कंसनट्रेशन आ जाएगा। Pk की वैल्यू 5, log 10 वैसी रहेगा, तो ये हो जाएगा सॉल्ट कितना दिया, देखो सॉल्ट है आपका, हाँ 0.1 अपॉन 1 लीटर, एसिड है आपका 0.25 अपॉन 1 लीटर। इसको सॉल्व करिए पूरा, यहाँ आएगा ये log 4 की वैल्यू आपने देखो पूरा सॉल्व करा है हमने। log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करा, अगर आप जान पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है, ये है आपका log, अच्छा यहाँ पे जब आपने सॉल्व करा ये आया log 10 अपॉन 25, फिर आया 5 प्लस 10 अपॉन 25, यानी 4.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं। ओके, फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.6। आप लोग करिए सॉल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेसिक बफर, जैसे एसिडिक पड़ा बफर वैसी बेसिक बफर। बेसिक बफर होगा वीक बेस और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल है आपके, डायरेक्ट जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं वो हैं, दीज आर NH4OH और NH4Cl का कॉम्बिनेशन, या NH4OH अमोनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन, देन है प्राइमरी अमीन वर्सेस सेकेंडरी अमीन जो कि सॉल्ट के फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, जैसे NH4OH प्लस HCl गिव्स NH4Cl, अगेन जहाँ पे वीक बेस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा 0.2, देन NH4Cl प्लस NH4OH इट गिव्स NaCl प्लस NH4OH। ठीक है, pH अगर हम देखेंगे, pH ऑफ बेसिक बफर इज इक्वल्स टू, ये बनेगा वीक बेस प्लस सॉल्ट, तो फॉर्मूला होगा बेस हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो दैट इज POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस log 10 सॉल्ट अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी पे बेस्ड हम हमें एक न्यूमेरिकल देखेंगे, दैट इज फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 0.02 मोल Na4OH Kb is equals to 10 to the power minus 5 in 0.03 moles NH4Cl in 1 liter of solution. Okay, so the formula is POH is equals to PKB plus log 10 salt upon base. अभी सॉल्ट कौन सा वाला है, NH4 पॉजिटिव वाला। ठीक, P ये हो जाएगा माइनस log 10 10 टू द पावर माइनस 5 जो कि वैल्यू दी है log 10। अभी ये कंसनट्रेशन के टर्म में आपको पता है, आप निकाल पाओगे, सारा कुछ सॉल्व करो तो POH यहाँ से आएगा बेटा 5.17। अब आपको पता है pH प्लस POH होता है 14, तो pH आप निकाल सकते हो,
14 माइनस पी ओ एच, यानी उसमें से 14 में से 5.17 जब माइनस करेंगे, सो द रिस्पेक्टिव आंसर विल बी 8.83. ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑल्सो, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इसके पहले एक टॉपिक का हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दैट इज रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर. ओके, सो सॉल्युबिलिटी एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. हमें पहले तो ये देखना होगा कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप की उनकी सॉल्युबिलिटी होती है. ओके, सो वेरी फर्स्ट इज द हाईली सॉल्युबल सॉल्ट. हाईली सॉल्युबल सॉल्ट इज दैट इज जो ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं. जैसे आपके यहाँ ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, एज यू कैन सी है दैट ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. ठीक. Second thing, all salts of Na positive, K positive, NH4 positive, Rb positive, Cs positive are also soluble. ओके, तो ये जो बेटा बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, इनकी हमें स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है जो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे आप. ठीक. नेक्स्ट है आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स which having insoluble criteria, जो कि insoluble criteria होता है जिनका, उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं आपके AgCl, AgBr, BSO4, PbSO4, ZnS, AgI and PO4 3 negative. ओके, these kinds of salts. तो इसमें हमें जो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के S और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज KSP. ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डिटेल में, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमें देखना है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में हम देखेंगे स्पेरिंगली दैट इज AB. कोई भी जो सॉल्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, ओके, जैसे कोई सॉल्ट अगर AB सॉलिड है तो वो देगा AB एक्वस, इट गिव्स AB पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, दैट इज एक्वस. क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा तो इट गिव्स एक्वस सोल्यूशन. तो क्या होगा, वो आपका ईजिली स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा. दैट मीन्स तो पहले तो वो सॉलिड क्या है, एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा. एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि आपका वो पानी में जाएगा, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा तो सॉल्युबल भी नहीं हुआ. ठीक. तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर सपोज इसके S मोल है, अगर इसके S मोल है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक्वस में, अपने रिस्पेक्टिव कटाइन और एनाइन में. ठीक. तो इसका K निकालेंगे. K क्या होगा इसका, ये होगा A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव अपॉन AB. तो आपको पता है जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो आपको सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लिखना होता, दैट इज यूनिटी. सो इट विल बी K इंटू AB इक्वल्स टू A प्लस इंटू B नेगेटिव. तो इसका KSP, यानी जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसके AB से सॉल्ट से इंटू करोगे तो विल गेट द न्यू टर्म KSP. तो ये हो जाएगा A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव, दैट इज फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली. एंड प्लीज रिमेंबर दैट KSP जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. क्यों, क्योंकि KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है K. KSP क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है K, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन in a saturated state at a given temperature. ओके, अब S दो टाइप के हो सकते हैं. एक हो सकते हैं सॉल्यूट जो कि ग्राम में हो, एक हो सकते हैं मोल्स में जो कि मोल्स पर लीटर में हो. ओके, तो ये दो टर्म में हो सकते हैं. तो अब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ S एंड KSP. सबसे पहला टाइप जो होगा इसमें हम जब देखेंगे तो दैट इज़ 1:1. पहला टाइप जो होगा वो होगा 1:1 टाइप, यानी AB टाइप की कैटेगरी, यानी जैसे सॉल्ट होगा AgCl, AgBr, PbSO4, BsO4. ठीक. अगर AB अगर कोई S मोल है तो एक्वस में जाएगा, तो AB एक्वस फिर वो रिस्पेक्टिव कटाइन एनाइन में टूट जाएगा. ठीक. तो अब हम इसकी इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन लिखेंगे वो इस टाइप का होगा. अगर यहाँ स्टार्टिंग में S मोल है तो यहाँ S और S मोल बनेगा, तो इसका KSP क्या होगा, KSP होगा दैट इज इक्वल टू A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव. तो KSP हो जाएगा सपोज, तो इसके S और S मोल, तो दैट विल बी S स्क्वायर.
अगर टाइप 1:2 या 2:1 वाला है, लाइक कैटेगरी AB2 या A2B, तो आपका सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा PbCl2 या सिल्वर क्रोमेट, दैट इज Ag2CrO4। तो AB2 होगा आपका A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव टाइप कैटेगरी। ठीक, तो जब आप AB2 को ब्रेक करेंगे तो विल गेट A पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव, 2B नेगेटिव। ठीक है, तो इसके 2 मोल बनेंगे। अब प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे जो S होंगे वो मोल्स पर लीटर में होंगे, जो कि इसकी सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे। तो अगर इसका हम KSP लिखेंगे तो KSP क्या आएगा, KSP होगा A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव की पावर 2। अगर यहाँ इसके S मोल है तो यहाँ इसके कितने हैं, 2S हैं, तो दैट विल बी S इंटू 2S की पावर 2, दैट विल बी 4S क्यूब। ओके, नाउ द थर्ड टाइप होगा 1:3 टाइप, दैट इज AB3, दैट इज AlCl3। AB3 होगा A पॉजिटिव प्लस 3B नेगेटिव, तो ये होगा S, ये होगा 3S। आपको पता है क्यों, क्योंकि इसका 3 नंबर मोल है। तो उसका KSP होगा बेटा KSP इक्वल्स टू A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव की पावर 3, तो ये हो जाएगा S की पावर 1, 3S की पावर 3, टोटल आएगा 27S4। ओके, तो अगर हम फोर्थ टाइप देखें तो ये होगा A2 और B2, यानी कैटेगरी होगा AS2S3 टाइप, आर्सेनिक सल्फाइड टाइप। ओके, तो ये होगा आपका KSP, जो कि होगा इसका KSP अगर आप निकालोगे तो आएगा 2S2 की पावर 2, 3S की पावर 3, तो टोटल आएगा 108S पावर 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज अगर कोई 3 टाइप के सॉल्ट हैं जिनकी KSP की वैल्यू दी है। ठीक, जैसे MX है, उसका KSP की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -8, MX2 है, उसकी वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -14, M3X है, उसका वैल्यू है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक, अब क्या करना है, आपको निकालना है इन ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, कब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, यानी इसमें अरेंज करना है। और अब प्लीज़ रिमेंबर दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब आपको KSP दिया है तो आप S निकाल लो। अब कैसे निकलेगा, देखो अभी MX है, MX यानी S की पावर 2, क्योंकि ये भी X ये भी S, तो S की पावर 2 इक्वल्स टू KSP, तो S होगा अंडर रूट ऑफ KSP, तो उसकी वैल्यू रखो तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अभी MX2 है, MX2 यानी M का तो S मोल, X का यानी 2S की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4S क्यूब, अभी देखा था हमने। तो इसका इक्वल्स टू KSP, तो S होगा KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, मैंने यहाँ करा है, आप डिटेल में वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा, तो S आएगा 2√2 इंटू 10 टू द पावर -5। नेक्स्ट है M3X, तो ये होगा 3S की पावर 3 और S, दैट इज इक्वल्स टू 27S की पावर 4, तो ये होगा KSP। तो अब क्या होगा, ये आएगा S इक्वल्स टू KSP अपॉन 27 की पावर 1/4। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये आएगा 10 टू द पावर -4। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको आप अरेंज करना है। तो जब आप अरेंज करेंगे आप देखेंगे कि MX सबसे बड़ा, ठीक, फिर M3X, फिर MX2। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई AB टाइप सॉल्ट है हमारे पास, उसका आयनेशन A पॉजिटिव और B नेगेटिव होता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। कैसे करेगी मैं आपको बताती हूँ। और कोई AX टाइप है तो AX टाइप देगा A पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब आप दोनों साइड देखें, A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया भाई राइट साइड। अगर A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। ली चाइल्ड यही तो कहता है कि वो उसके इफेक्ट को अंडू करने के लिए। ठीक ठीक, तो क्वेश्चन है आपका इसी पे बेस। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा, A पॉजिटिव जो है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4, जिसमें KSP की वैल्यू है 10 टू द पावर -4 इन वाटर निकालना है, एंड 0.2 m BA नाइट्रेट सोल्यूशन। अभी BA नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है भाई। अब सबसे पहले वाटर में निकालेंगे, तो इक्वेशन देखो, BaSO4 इट गिव्स BA पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो KSP ऐसा होगा। तब KSP क्या, S² यानी S यानी अंडर रूट KSP, दैट इज अंडर रूट 10 टू द पावर -2। आंसर क्या होगा, 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो अभी BaSO4 में निकालेंगे। BaSO4 में होगा तो क्या होगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अभी बेरियम नाइट्रेट में देखेंगे तो ये आएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ NO3 नेगेटिव। अगर सपोज इसका कंसंट्रेशन 0.2 m है तो ये क्या होगा, इधर वाला 0.2 m एंड 0.4 m। क्यों, क्योंकि इसके 2 नंबर ऑफ मोल हैं।
ओके तो इसका केस भी क्या होगा, इसका केस भी होगा Ba2 पॉजिटिव इंटू SO4 2 नेगेटिव की पावर 1। अभी BSO4 ये केस भी तो BSO4 का है और Ba2 पॉजिटिव कहाँ से आया, सॉल्यूशन से। अभी सॉल्यूशन से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एस रखा हुआ है मैंने, तो ये Ba2 पॉजिटिव सोल्यूशन से आया है, तो प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे हमें 0.2 में एस को प्लस करना पड़ेगा, और SO4 तो आपको पता है एस है ही, तो दैट इज इक्वल टू KSP। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि S जो डैश होगा दैट इज इन कंपैरिजन टू द 0.2 दैट कैन बी इग्नोर। क्यों, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द Ba2 पॉजिटिव आर कमिंग फ्रॉम द बेरियम नाइट्रेट ओनली, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो KSP आएगा S प्लस 0.2 की इंटू एस डैश, तो ये होगा 10⁻⁻4 इक्वल्स टू 0.2 इंटू एस डैश, तो एस डैश की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक भी फिनिश खत्म। ओके, टिल दैट थैंक यू।